علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی اسکالرشپس ان چائنا کے اوپر کہ ہم چائنا میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں فار پی ایچ ڈی اینڈ ماسٹرز کی ڈگری کے لیے، کون کون سی اسکالرشپس ہیں، کس ٹائپ کی ہیں، کیوں اپلائی کرنا چاہیے، ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ایکسیپٹنس لیٹر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور پروفیسر کو ای میل کیسے سینڈ کرتے ہیں اور فیکلٹی کیسے فائنڈ کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ I'm Muhammad Ahmed from Pakistan and recently selected PhD program at Housing Agriculture University, Wuhan, China. Dear viewers, ہم بات کریں گے کہ اسکالرشپ پر کیوں اپلائی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں ایجوکیشن اینڈ ہمارے کیریئر گروتھ کو ڈیولپ کرتی ہے، ہمیں ایکسپوجر ملتا ہے انٹرنیشنل اسکالرس کے ساتھ، انٹرنیشنل پروفیسر کے ساتھ، اپرچونٹی اوپن ڈور ہو جاتی ہیں ہمارے لیے پوری دنیا میں، یعنی کہ تمام ہمارے لیے پوری دنیا کے لیے دروازے اوپن ہو جاتے ہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو ہمیں ایک ہی جگہ رہ کر ہم ڈیولپ نہیں کر پاتے، لیکن جب ہم ان کی سوسائٹیز میں جاتے ہیں، ان کی سخاوت کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کا جو رہن سہن ہے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں، تو یہ ہماری جو شخصیت ہے اس کے لیے امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسپیشلی ڈاکٹر مبشر صاحب کا، جو کہ ہمیں جس کے ساتھ ہم نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا ایز اے پی پی ایس سی پریپریشن کے لیے اور ایف پی ایس سی پریپریشن کے لیے، لیکن سر کی جو موٹیویشن تھی وہ نہ بی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی یہاں تک ہی لمیٹڈ نہیں رہی۔ سر نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ کیسے باہر جا سکتے ہیں، کیسے اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اونلی پی پی ایس سی جابس کو ہی کنسیڈر نہ کریں، آپ فار اوے اس ملک سے باہر جا کر بھی اپنا جو ہے اپنی اسکلس کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ تو سر کی جو موٹیویشن ہی تھی کہ ہم جیسی نتیجے بھی اس اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہو۔ جو ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ بھی کون کون سی اسکالرشپس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں آفر کی جاتی ہیں، جو چائنا ہمیں آفر کرتا ہے۔ آنسو اسکالرشپس ہیں، سی ایس سی اسکالرشپس ہیں، اسکل روڈ اسکالرشپس ہے، پروویژنل اسکالرشپس ہے اور یونیورسٹی اسکالرشپس ہے۔ ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ون بائی ون۔ سب سے پہلے ہم آنسو اسکالرشپس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ ایبریویشن ہے الائنس آف انٹرنیشنل سائنسز آرگنائزیشن کا۔ یہ جو فنڈڈ کرتی ہے یہ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز اس کو آفر کرتی ہے، اور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، صرف 2 یونیورسٹیز ہیں جو کہ آنسو اسکالرشپ آفر کرتی ہیں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول والوں کے۔ بینیفٹس کیا ہیں؟ بینیفٹس اسکول ٹیوشن فیس معاف ہوتی ہے اس کے اندر، منتھلی اسٹائپنڈ آپ کو ماسٹرز والے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو 3000 ملتا ہے، اور پی ایچ ڈی والوں کو 7000 سے ابو ہی ملتا ہے۔ ہیلتھ انشورنس اور آپ کا ایئر فیئر فری ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور جو سی ایس سی اسکالرشپ ہے یہ چائنا کی آلموسٹ 300 یونیورسٹیز ہیں جو آفر کرتی ہیں، یہ بیچلر ماسٹر اور پی ایچ ڈی اسپیشلی ان ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی والوں کو آفر کی جاتی ہے۔ بیچلرز کے بھی کچھ پروگرام اس کے اندر آفر کیے جاتے ہیں، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ ٹیوشن جو اس کے اندر بالکل فری ہوتی ہے، اکوموڈیشن آپ کی فری ہوتی ہیں، اسٹائپنڈ آپ کو جو ماسٹرز والوں ہیں ان کو 3000 ملتا ہے، پی ایچ ڈی والوں کو 3500 RMB ملتا ہے۔ جو کیٹیگریز ہیں 2 کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں، ویسے تو 3 کیٹیگریز کے اندر ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ 2 کیٹیگریز ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ فرسٹ کیٹیگری جو ہے وہ چائنیز امبیسی کے ذریعے، کہ ہم نے امبیسی کے ذریعے امپروو کرنا ہوتا ہے، اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایچ ای سی کا ہیڈ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، اس میں سے ہائی اسکور کرنے کے بعد ہم امبیسی کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائپ ہوتی ہے ہم ڈائریکٹ یونیورسٹی کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں، پروفیسر کو ای میل کرتے ہیں اور ہمیں اسکالرشپ مل جاتی ہے۔ موسٹلی جو پریفر کی جاتی ہے وہ ٹائپ بی کی جاتی ہے، کیونکہ ہیڈ ٹیسٹ موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہیں دیتے، تو جس وجہ سے جو مین بیریئر ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ہیڈ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے۔
اور جو सिल्क रोड स्कॉलरशिप्स है ये भी सेम एज जो है सीएससी स्कॉलरशिप्स की तरह है, तमाम के तमाम बेनिफिट्स उसी की तरह हैं। स्टाइपेंड मिलते हैं, अकोमोडेशन होती हैं, ट्यूशन फीस माफ होती है। प्रोविजन स्कॉलरशिप्स हैं जो फुली फंडेड हो सकती हैं, जो चाइनीज की जो भी वहाँ के प्रोविंस हैं वो ऑफर करवाते हैं। ये फुली फंडेड हो सकती है और ये पार्शली फंडेड भी हो सकती है। फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो सीएससी के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते तो यूनिवर्सिटी उनको सिलेक्ट कर लेती है अपनी ही यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए। ये भी फुली फंडेड भी हो सकती हैं, स्टाइपेंड थोड़ा बहुत कम हो सकता है और यानी कि अकोमोडेशन भी मिलती हैं। सिर्फ स्टाइपेंड होता है सम टाइम जो कम मिलता है, बाकी तमाम के तमाम इसके भी वही बेनिफिट्स हैं जो सीएससी स्कॉलरशिप के होते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी स्कॉलरशिप, चाहे आपने चाइना में अप्लाई करना हो, जापान में करना हो, कोरिया में करना हो, यूरोप के किसी कंट्री में करना हो, तो आपके लिए पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। इसके बगैर आप एप्लीकेशन शुरू ही नहीं कर सकते। नंबर दो जो चाइना के लिए है वो डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट का नोटराइज होना ज़रूरी है। नोटराइज कहाँ से करवाई जाती है? नोटराइज आप लोग चले जाएंगे किसी भी कचहरी ऑफिस कचहरी के अंदर, वहाँ पर वकील जो बैठे होते हैं, लॉयर बैठे होते हैं, वो वहाँ पर कोई ना कोई लॉयर है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो नोटराइज कर दे आपको आपकी कॉपीज। ओरिजिनल नहीं करवानी, कॉपीज करवानी। उसके बाद हम स्टडी प्लान बनाते हैं, जो मास्टर वाले स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं वो स्टूडेंट्स जो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। रिसर्च प्रपोजल और सम यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि ये जो आपने रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान बनाया है ये साइन होना चाहिए सुपरवाइजर। और रिकमेंडेशन लेटर्स जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने बैचलर या मास्टर किया हो वहाँ से आपका प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या सुपरवाइजर आपको बना कर देता है, उसकी स्टैंप लगती है और सिग्नेचर होती है। सीवी मोस्टली जो रिकमेंडेड सीवी है वो यूरोप पास सीवी रिकमेंडेड किया जाता है क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टाइल है। लेकिन जब हम प्रोफेसर चाइनीज प्रोफेसर को सेंड करते हैं तो ये हम कंसिडर करते हैं, यानी कि हम ये अब शो करते हैं कि जो वहाँ का जो सीवी का जो लोगो है यूरोपास का, वहाँ पर ऑप्शन होता है तो वहाँ से हम उसको रिमूव कर देते हैं। लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आपने चाइनीज में कोर्स करना है तो एचएसके, आइट्स, टॉफल, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी चल जाता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है वो आपकी जो प्रीवियस जहाँ से आपने डिग्री की हो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज बना कर देता है। एक्सेप्टेंस लेटर ये मास्टर्स वालों के लिए ऑप्शनल होता है, लेकिन हाईली स्ट्रॉन्ग ये रिकमेंडेड किया जाता है कि आपके पास अगर एक्सेप्टेंस लेटर हो तो आपके चांसेस 40 to 50% बढ़ जाते हैं। लेकिन पीएचडी वालों के लिए मैंडेटरी होता है कि आप कहाँ से हासिल करते हैं। ये चाइनीज प्रोफेसर या सुपरवाइजर को आप अप्रोच करते हैं, वो आपको इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू लेने के बाद अगर वो आपसे यानी कि आपकी रिसर्च से मुतासर होता है तो फिर आपको वो एक लेटर जारी करता है एक्सेप्टेंस। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये आप किसी यूनिवर्सिटी की साइट्स पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, फिल करते हैं और अपने करीबी हॉस्पिटल से जाकर साइन वगैरह करवा लेते हैं। जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये पुलिस सर्टिफिकेट आप अलखिदमत सेंटर चले जाएँ किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन के, वो आपको बना देंगे। लेकिन ये 6 मंथ की इनकी वैलिडेशन डेट होती है, तो उसी वक्त बनाए जब आपने एप्लीकेशन फिल करनी हो। पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी बैकग्राउंड होता है वो वाइट होना चाहिए। सम यूनिवर्सिटीज की फीस होती है 800 आरएमबी, 400 आरएमबी, 600 आरएमबी, और सम यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ्री, कोई फीस नहीं होती अप्लाई करने की। ये तो ये हो गई इसकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। हम अब बात करते हैं कि अ, हम एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हासिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर को टारगेट कैसे किया जाए। सबसे पहले हम जब सुपरवाइजर को टारगेट करते हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर फैकल्टी वगैरह को हम मैं आगे बताऊँगा आपको पीसी के ऊपर किस तरह हम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में जाते हैं, वहाँ पर प्रोफेसर को ईमेल करते हैं। ईमेल लिखने का शॉर्ट तरीका क्या होता है, उसको अपना इंटरेस्ट बयान करो, वाई डू वर्क करना चाहते हो आप, उसके साथ क्यों वर्क करना चाहते हो, अटैच सीवी अटैच करो। और जो टाइम ईमेल होता है वो जो इस्लामाबाद स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान के मुताबिक 4 to 5 AM होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 to 5 AM होगा तो बीजिंग टाइम वो 7 to 8 होगा, क्योंकि जो और लाइब्रेरीज जो लैब होती हैं
यहाँ पर प्रोफेसर बैठ के काम करते हैं, वो सुबह जाते ही अपनी ईमेल ओपन करते हैं। जब आप इस टाइम पे करेंगे तो आपकी ईमेल सबसे ऊपर होगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रोफेसर आपकी ईमेल पढ़ ले। अगर रिप्लाई नहीं आता तो 7 to 8 डेज वेट करें, रिमाइंडर दें और नेक्स्ट प्रोफेसर को ईमेल करना जारी रखें। एक और बात कहता चलूँ कि कोशिश करें 4 से 5 एक्सेप्टेंस लेटर आप ले लें, क्योंकि आज से 1 और 2 साल पहले हम 3 स्कॉलरशिप यानी कि सीएससी की 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने एक ही यूनिवर्सिटी की जो कर दी है ऑप्शन में रख दी है। आप सीएससी के ऊपर एक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर सकते हैं। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेने से ये होगा कि आप उनकी जो बाकी यूनिवर्सिटी जो हैं, जो स्कॉलरशिप्स हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, यानी कि अदर स्कॉलरशिप्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको लेटर कैसे मिलता है वो मैं बता चुका हूँ पहले ही कि प्रोफेसर आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करता है, उसके बाद वो आपको एक लेटर जारी करता है। इसमें प्रोफेसर को ईमेल कैसे करते हैं, ये अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे प्रोफाइल फाइंड करते हैं प्रोफेसर की। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जैसे ही हम यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, हाउसिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जब हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास ये साइट ओपन हो जाएगी। अ, ये यहाँ पर इसको इंग्लिश भी कर सकते हैं और जब हम इंग्लिश करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह की ओपन हो जाएगी। लेकिन इंग्लिश मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि सम टाइम जो चाइनीज़ साइट है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है लैंग्वेज की, तो आप चाइनीज़ में जाएँ और चाइनीज़ में जाने के बाद यहाँ से आकर आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करें। इससे क्या होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन से आपके पास ज़्यादा एक्सेस मिल जाती है, ज़्यादा ऑप्शन क्रिएट होते हैं। जब आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाके डिपार्टमेंट सेटिंग या डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट पर जाकर हम आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर कॉलेज ऑफ फिशरीज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास जो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखें साइंटिस्ट हैं, फैकल्टी टैलेंट है, ये देखें यहाँ पर क्लिक करोगे तो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर आ जाएंगे। जब यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर जो प्रोफेसर आ जाते हैं तो आप प्रोफेसर को ईमेल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी साइट ओपन होगी। ये अब आप इसको यहाँ से इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो ये आपके पास इंग्लिश में आ जाएगा। अब एक दो प्रोफेसर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो प्रोफेसर है इसको ओपन किया है। अब ये इसका ईमेल पड़ा हुआ है, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और ले जाएंगे अपने इस जगह के ऊपर जो आपने कंपोज करना है ईमेल, तो इसके अंदर आपने टू के ऊपर यानी कि 1 by 1 ईमेल सेंड करना है। हर प्रोफेसर को सीसी नहीं कर देना सबको, सीसी करके बाकी प्रोफेसर अटैच कर दें। एक प्रोफेसर को एट टाइम एक ही ईमेल सेंड करनी है। टू पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ से ईमेल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ से आप इसको कॉपी किया और यहाँ पर ले गए आप कॉपी किया। रिक्वेस्ट के अंदर आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट के अंदर के रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर वर्क दिया। ईमेल बॉडी बताता हूँ कैसे लिखनी है। अब आपने प्रोफेसर की पूरे ध्यान से पढ़नी है कि उसकी रिसर्च डायरेक्शन क्या है, वो और क्या क्या चीज़ बयान करता है, उसका रीसेंट पेपर क्या है, रीसेंट पेपर देखना है उसका क्या है। अब जैसे कि मैं एक और प्रोफाइल ओपन करता हूँ, ये देखें, ये प्रोफाइल आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगी। ये देखें, ये प्रोफेसर है, इसकी फिश इम्यूनिटी एंड डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के ऊपर जो रिसर्च डायरेक्शन है उसने नीचे मजीद इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये किस तरह मेरी यानी कि मैं काम करता हूँ, मेरी लैब कैसे काम करती है। उसकी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो ये दिए हुए हैं और जो लेटेस्ट उसके जो पब्लिकेशन हैं वो ये हैं। ठीक है, आप इसकी जो पब्लिकेशन है प्रोफेसर की वो वहाँ से गूगल स्कॉलर पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। आप नीचे चले जाएं, अब यहाँ पर जो देखें वी डॉट वी ये लिखा हुआ है, पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट को एक्सेप्ट करूँ। इस तरह के जो प्रोफेसर हैं, इन प्रोफेसर को जरूर ईमेल करें। इन प्रोफेसर को आप मिस नहीं कर सकते। बाकी प्रोफेसर के साथ ईमेल नहीं लिखा होता
ऐसा कि इस प्रोफेसर ने नहीं लिखा होगा, इनको भी करेंगे ईमेल, लेकिन इनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। सबसे पहले आपने टारगेट करना है ऐसे प्रोफेसर को जो वेलकम कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं एक और यूनिवर्सिटी ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि अभी मैंने कैस का डिपार्टमेंट ओपन है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड अकेडमी ऑफ साइंसेज का। यहाँ पर जब हम कैस के इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो ये मेरे पास इसके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, बीजिंग ब्रांच है, शंघाई ब्रांच है, वुहान ब्रांच है, नानजिंग ब्रांच है, गांजो ब्रांच है, जितनी भी ये फॉर्मिंग ब्रांच है, इसके अंदर आपको जुआलॉजी के डिपार्टमेंट और अपने रिलेटेड आपको तमाम की तमाम मिल जाएंगे। अभी देखिए मैंने जो बीजिंग ब्रांच ओपन की है तो 6 के ऊपर जाकर जो इंस्टीट्यूट ऑफ जुआलॉजी पड़ा हुआ है, जब मैंने इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सीधा ले जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ जुआलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ले जाएगा यहाँ पे मेन पेज के ऊपर। अगर मैं साइंटिफिक वाले ऊपर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास तमाम के तमाम जो साइंटिस्ट हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स रखते हैं, उनकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक कर लें, यहाँ पर क्लिक कर लें, यहाँ पर क्लिक कर लें, वो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ग्रुप भी दिए हुए हैं, ईमेल दिए हुआ है, आपके सामने ये ऐसे ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर आप जाकर इनका ग्रुप भी दे सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट पेज भी दे सकते हैं। ये तमाम की तमाम उसकी प्रोफाइल ओपन आ गई। ये यहाँ पर उसका ईमेल दिया हुआ है, यहाँ पर जो ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको खुद आपने एडिट कर लेना है, एट द रेट ऑफ डाल लेना है, जो जिसको हम उल्टा ए भी कहते हैं। इसी तरह ये वाला प्रोफेसर, ये देखो इसने अपनी ये साइट भी दी हुई है और ये चीज़ें भी दी हुई है। अगर हम साइट पे क्लिक करते हैं ऐसे, इसकी प्रोफेसर हमें ये वर्क नहीं कर रही, चलो मैं नेक्स्ट भी करके देख लेता हूँ। ये देखें इसका जो प्रोफेशनल जो ग्रुप है उस पर ले गया है सीधा। ये देखें उसमें पीपल कौन कौन से हैं, ये देखो ये खुद है प्रोफेसर जो कि हेड है, ये उसने साथ उसके एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये उसके तमाम स्टूडेंट्स पीएचडी कौन कौन से हैं, मास्टर के स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये उसने प्रोजेक्ट करंट रिसर्च वो किस पर करवा रहे हैं, ये देखो उसने करंट रिसर्च के बारे में सारी डिटेल दी हुई है। ये देखिए ये तो कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ किस किस पर काम कर रहा है, ये देखिए ये तमाम की तमाम उसने अपनी डायरेक्शन दी हुई है कि मैं इस पे काम करवा रहा हूँ। आपने इसको देखना है, पढ़ना है गौर से। अब ईमेल बॉडी कैसे की जाती है, सबसे पहले डियर प्रोफेसर या रिस्पेक्टेड प्रोफेसर के नाम से आपने अपने नाम के बारे में बताना है, एमफिल किया हो या बीएस किया हुआ हो, जिस सब्जेक्ट के अंदर जितना सीजीपीओ हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा हुआ है, लोग वो बयान करना है। आपने बीएस कहाँ से किया हुआ है वो भी आप सीजीपी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता देना है। और करंटली जो आपने को काम किया हो, जो थीसिस किया है, उसका टाइटल वगैरह हो गया, या आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसकी मेंशन कर सकते हैं। नीचे आपने लिखना है कि हमने जब आपकी प्रोफाइल पढ़ी तो यहाँ पर प्रोफेसर का जो रिसर्च इंटरेस्ट है, यहाँ पर मैंने आपको बताया हूँ ये पढ़ा हुआ है प्रोफेसर का रिसर्च डायरेक्शन इंटरेस्ट। बताना है कि यहाँ पर इसको वैसे कॉपी करो, यहाँ जाकर पेस्ट कर दो और बताओ कि ये मैंने आपके इसके ऊपर इंटरेस्टेड हूँ उस काम से। और मैंने आपकी रिसेंट एक पढ़ा है, क्या चीज़ पढ़ी है मैंने आपकी, आपका मैंने रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ा है, प्रोफेसर का एक लेटेस्ट आर्टिकल उठाना है और उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है आर्टिकल का टाइटल को। फिर आपने आगे यहाँ पर अगर ये एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, तो आप बता सकते हो कि कैसे आपका काम उसके प्रोफेसर के काम से अलाइन हो रहा है, वरना ये काट दो, कोई ज़रूरत नहीं। नीचे आपको बताना है सीवी अटैच करनी है, सीवी अटैच करने के बाद यहाँ से सीवी अटैच होगी, अटैच फाइल, कोई भी सीवी यहाँ से उठाओ, अटैच करो यहाँ से, और यहाँ पर जाकर